सो वी हैव कंप्लीटेड लीस्ट रिएक्टिव, हमने देख लिया है। आज इस चैप्टर को खत्म करना है। अब हम देखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव। इन मॉडरेटली रिएक्टिव the only thing is the basics you have studied, that two things you have studied, calcination and roasting. Calcination comes from the word C, means it is used for a carbonate ore. Roasting is always in the presence of air, calcination is in the absence of air. Okay, our job is whether we'll get either a carbonate ore or we will be getting a sulfide ore. In both the cases we will heat them, one in presence. So all these equations you have already written, so I'm just going, this part will go very fast because we know about it. So this is moderately reactive. Moderately reactive metals. And in this iron also comes, but however your syllabus has been made very goody and you have been explained only about zinc, so you need to understand about zinc. So we will be qualifying zinc with two type of ores. One is ZnS, the sulfide ore, and one is the carbonate ore, ZnCO3. राइट, व्हाट विल बी आवर जॉब? इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। अगर हमारा सल्फाइड ओर है तो हम इसे क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। और अगर हमारा कार्बोनेट ओर है तो हम इसे क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दोनों ही केसों में हमें मिलने वाला है जिंक का ऑक्साइड। आई थिंक दिस रिएक्शंस वी हैव रिटन इन लास्ट क्लास, राइट? रिएक्शंस लिख चुका हूं, राइट? तो दोनों ही केसों में हमें जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। और जैसे ही आपको जिंक का ऑक्साइड मिल जाता है, आपका नेक्स्ट स्टेप है इसको रिड्यूस करना, रिडक्शन। इसके लिए आप यूज करते हैं कोक, जो कि है अ फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो, व्हाई डू वी यूज कोक? बिकॉज कार्बन हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दिस मेटल। बात समझ में आ रहा है? ये चीज फेल कर जाएगा हाईली रिएक्टिव के ऑक्साइड्स में। Like when we go for highly reactive oxides, let's say sodium oxide, calcium oxide, aluminum oxide, there we cannot reduce with carbon. Ultimately idea क्या है? Why do you use carbon? You use carbon because carbon वहां से ऑक्सीजन को झपाक से पकड़ के ले आएगा। Carbon has to have more affinity for oxygen than the metal that you are trying to refine. But when we go for, I'll not repeat this in that section, so remember now only, when you go for highly reactive oxides, in highly reactive oxides the metal has more affinity for the oxygen. ओ 3 इडियट जैसा, जाने नहीं देंगे तुझे, तो ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा वो, कार्बन आने से भी लेके नहीं जा सकता है। पर यहां ले जाओ इस ऑक्सीजन को ले जाओ। इसके समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम इसमें रिडक्शन में यूज करते हैं। और जैसे ही आप इसको रिडक्शन में यूज करोगे, आपको मेटल मिल जाएगा। वो मेटल उतना रिफाइन नहीं होता है, उसे हमें बाद में रिफाइन करना पड़ता है। सो वन रिफाइनिंग केस वी विल आल्सो सी। हैव यू अंडरस्टूड दिस thing? So the reactions out here will be what? ZnS will react with oxygen and you will heat it. It will give you sulfur dioxide and ZnO. ZnO reacts with C. यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बाद हम इसको C के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा? Zn plus CO2। और यहाँ ZnCO3 को हीट करेंगे। जस्ट हीट करोगे तो हीट करने से क्या हो जाएगा? ये इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। आपको Zn ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो दोनों ही केसों में Zn ऑक्साइड मिलेगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? राइट? sometimes like the reducing agent, okay, the reducing agent, इसमें आपने, so one of the techniques is using a reducing agent in the form of coke in the form, carbon in the form of coke. There is one more technique in which we use displacement reactions also. Displacement reactions. And in displacement reaction, what do? We will actually get our metal oxide. This metal is actually moderately reactive. So the metal oxide will actually be made to react with a highly reactive metal. Highly reactive metal. And displacement will take place. So highly reactive metal will convert into oxide, understood, and the metal will be freed. This is there as a type of example also, we will see. So the metal will be freed and you will get the highly reactive metal oxide. So primarily we use coke as our reducing agent. However, in some cases we can also use highly reactive. यहाँ पे
रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑलवेज रिमेंबर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल रेडॉक्स रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में रेडॉक्स नहीं होता है। तो अगर हम if you see your book example for this particular criteria, so this is actually a reaction which we also use for inducing lot of heat. We'll come to that. जब आपको हीट ज्यादा चाहिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2. So manganese is the metal that you want to extract. You want to extract what? Manganese. इसको आप रिएक्ट कराएंगे एल्यूमिनियम के साथ. That means ये है आपका मेटल ऑक्साइड, ये है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल. So you expect now to get aluminium oxide Al2O. पहले मेटल है ना, sorry. So first we will get our metal Mn. First we will get Mn and we will get Al2O3. This is a highly exothermic reaction. Highly exothermic reaction. So this gets balanced as 3. This is 4. So 4 means this will be 2 and this will be 3. And you will get this metal in liquid form only. इतना हीट जनरेट होता है इसमें, ये मेटल आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा. Understood? That's all about moderately reactive. So what have you studied so far? Moderately reactive में the metal that qualifies for our syllabus is zinc. Moderately reactive में our idea should be to get an oxide. To get an oxide, the ore can either be a sulfide or a carbonate. Sulfide means roasting, carbonate means calcination. Roasting is in presence of oxygen, carbonate in presence of air, and calcination is in absence of air. Both the process will give me what? Oxide. Oxide is then further reduced with a reducing agent like carbon in the form of coke, and you get the metal freed out. In some cases, we also use highly reactive metal, and then we are using displacement reaction. जैसे आपके बुक में बोलता है, can you identify the oxidation and the reduction? इसकी oxidation reduction निकाले. आइए देखते हैं याद है कि नहीं. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2. तो यहाँ पे -2 मींस मैंगनीज इज इन +4, ऑक्सीजन इज इन -2. एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? 0. यहाँ पे मैंगनीज का क्या हो गया? 0. ये 2 को मत देखिए, 3 into -2 is gives you -6. सो 2 होने से यहाँ पे +3 स्टेट में आएगा. अब आप खुद ही देखिए, मैंगनीज +4 से 0 हुआ, लोअरिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिड्यूस हुआ है. रिड्यूस मतलब अच्छा बच्चा बनना, अच्छा गंदा बच्चा था, अच्छा बच्चा बन गया. और ये 0 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में गया है. सो इफ एनीबॉडी टेल्स यू who got oxidized in this process, aluminum got, and oxidation is always addition of oxygen. Aluminum got oxidized from 0 to +3, whereas manganese got reduced from +4 to 0. Is this clear? समझ में आया? अब इसका एक और ऐसे रिएक्शन का एक और देयर इज वन मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और इसको आप एक्सपेक्ट कर ही लीजिए, ये आता है कभी कभी. इसका एप्लीकेशन बेस्ड and this is typically from this concept only. Okay, now when you have railway tracks, है ना, आपके railway tracks में अगर क्रैक आ गया है तो railway tracks are made up of iron, rather basically steel. तो रेलवे ट्रैक में आपको क्रैक आ गया, मान लीजिए ऐसे क्रैक आ गया है. नाउ यू कांट ओपन द रेलवे ट्रैक, टेक इट आउटसाइड एंड रिपेयर, आपको वहीं पे करना पड़ता है. तो इस ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इन सिटू. आपके बुक में मेंशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड एन इन सिटू वेल्डिंग प्रोसेस. मतलब खरा वहीं पे आप करोगे इसको. समझ में आ रहा है? इन सिटू वेल्डिंग. इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इन आवर इंडस्ट्री वी कॉल इट एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग और as the thermit welding process. The thermit welding. आपके बुक में thermit process है तो ऐसे ही ले लीजिए. The word is actually aluminothermic process, means we will use aluminium and we will generate a lot of heat, so much heat that we will get molten iron, and that molten iron will actually get deposited over here. तो इस प्रोसेस में कैसे करते हैं, इसके ऊपर में you will put up a structure something like a hopper, you know, HOOPER, जिसमें आप धान चावल ये सब कूटते हैं ना, ऐसे हुपर जैसा रहता है. उसमें हम रिएक्शन करेंगे, हमें आयरन चाहिए, मोल्टन आयरन. तो हम क्या लेंगे, कॉमन सेंस ले लो, आयरन की ऑक्साइड लेंगे. आयरन के ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एल्यूमिनियम के साथ. हमें क्या मिलने वाला है? लिक्विड आयरन. वो लिक्विड आयरन जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. यू कैन गूगल इन यूट्यूब ऑल्सो, दिस इज वेरी कॉमन थिंग इन रेलवेज दे डू. एंड iron aluminum oxide will be released. So let's write this reaction.
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. So this is Fe2O3. Can you tell me what is the oxidation state of iron here? Check करो. Oxygen is always -2. That means it is -6. That means iron should be in +3 oxidation state. +2 में ferrous, +3 में ferric. तो ये फेरिक ऑक्साइड है. IUPAC वे में लिखेंगे तो आयरन 3 ऑक्साइड. इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे. हमें मिलने वाला है Fe मिलेगा हमें इसे. और ये L वर्ड जरूर लिखिए. दिस इज लिक्विड मोल्टन हॉट आयरन एंड यू विल जनरेट द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. सो राइट, Fe2O3, 2Al and 2Fe, 2Al and 2Fe, and here also tremendous amount of heat will be produced. यही क्वेश्चन आएगा. लेकिन हाँ, कोई आपको आजकल ये सब नहीं पूछेगा. ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा. A commonly used welding process to repair railway tracks at their site uses identify the type of equation reaction आपको पूछेगा. Identify the oxidizing agent, identify the reducing agent, who got oxidized. क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल से है, लेकिन पूरा चिपका रहा है कहां से? फर्स्ट चैप्टर से चिपका देगा आपको. बैलेंस द रिएक्शन इसी में ही दे देगा आपको. आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स, राइट ए वन वर्ड इक्वेशन. क्योंकि अगर एनसीईआरटी में वर्ड इक्वेशन है और तो आपको वर्ड इक्वेशन भी देखना है, और अगर फॉर्मूला इक्वेशन है तो देखना है, वो आपको याद रहना चाहिए. तो ऐसा एक रिएक्शन आपको दे देगा. कॉमनली यूज्ड प्रोसेस इज देयर. सी आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन वेयर oxide of a metal is used to cure or repair broken tracks right at the site. Name the process. 1 mark. Thermit process, thermit welding process. Number 2, write the word equation along with a balanced chemical equation. दे दिया 2 mark उसमें. Identify the oxidizing agent, identify the reducing agent. What type of reaction is it? Redox reaction, displacement reaction. क्योंकि केमिस्ट्री में इतना सवाल नहीं पूछ सकता. एक सवाल पूछेगा उसमें हर चैप्टर से आपको ले लेगा. सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका क्वेश्चन अलग आ सकता है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्योंकि वो बिरादरी अलग है. अब बात समझ में आ रहा है? पहला तीनों चैप्टर तो आपको ट्रंक करके आएगा. तो यहां बच्चा समाप्त होता है मध्यम रिएक्टिव वाले. अब हम हाईली रिएक्टिव को देखेंगे. हाईली रिएक्टिव में आपकी बुक में कुछ भी नहीं है, तो जस्ट गल्प करना है. आइए, हाईली रिएक्टिव. Highly reactive में we cannot use, the first thing you should remember, we cannot use carbon in their oxides, because if you use carbon in the oxides, the problem that you will be having is that carbon's affinity for oxygen is not impacted because the metal has more affinity for the oxygen. Okay, the metal will be having more affinity for the oxygen, right? So इसमें हमारे 3 ग्रुप ऑफ मेटल्स आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. हमारे चैप्टर में सोडियम के बारे में जानना है. और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition or electrolytic reduction. What is the term they have used? Electrolytic reduction they have used. Okay, electrolytic reduction एकदम इजी है, पहले समझते हैं. As you go in higher classes, 2 processes you will study. One is called electrolytic cell. अब तक आपने grade 8 में भी इसी को पढ़ा है, और 11-12 में जाके आप एक और सेल पढ़ेंगे जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दोनों का फर्क पहले समझिए थोड़ा सा. In electrolytic cell, input is always electricity. At a very high level, I'm trying to explain to you. Input is always electricity, and the output will always be a chemical reaction. Here, input will always be a chemical reaction, and output will be electricity. मतलब जो dry cell, ये बैटरी वगैरह आप देखते हैं, वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं. वहां केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. और ये इलेक्ट्रोलिटिक मींस वन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन. हैव यू अंडरस्टूड? जो वाटर हो गया, किसी भी चीज का हो गया, आप जो भी पढ़ के आए हो ग्रेड 8 से लेके ग्रेड 10 तक, आप इसी चीज को ही पढ़ोगे. आप ये चीज नहीं पढ़ोगे अभी. लेकिन फाइट कब होगा? आई एम सेइंग फ्रॉम ग्रेड 12 पर्सपेक्टिव, द फाइट विल कम
here you have a common habit saying that कैथोड को हम कैसे याद रखते थे, कार्टून नेटवर्क, मतलब कैथोड इज नेगेटिव, और एनोड को कैसे याद रखते थे, आंध्र प्रदेश, एपी, एनोड इज पॉजिटिव। लेकिन जब आप यहां चले जाएंगे ना 12 में, कैथोड पॉजिटिव बन जाएगा, एनोड नेगेटिव बनेगा, तब आपके दिमाग में आएगा हमने तो सारी जिंदगी सीएन करके पढ़ा। एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। एनोड all the best, this I teach children because you're going from 8 to 10, but if you want to learn the right way जिसमें आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा, एनोड is the electrode where always oxidation will take place, cathode is the electrode where always reduction will take place. This is the best way to remember. अगर आप ऐसे रिमेंबर करोगे, ये भी करेक्ट आएगा, ये भी करेक्ट आएगा। हालांकि ये अभी आप पढ़ने वाले नहीं हो, ये आप 12 में पढ़ोगे, लेकिन आप एक चेक करना किस इलेक्ट्रोड में आपका ये हो रहा है, व्हाट यू कॉल ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज, अच्छा अक्षत इज अटेंडिंग स्कूल, अच्छा उस इलेक्ट्रोड में आपका हमेशा ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है वो एनोड है। इनफैक्ट अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, हमें भी एनोड में ही ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। But since you are at grade 8 to 10 level, you can, if you find this is clumsy, you go by your Cartoon Network. CN means cathode is always negative. Have you understood? So in these electrolytic type of reduction, we will always take a electrolytic tank. हालांकि इसका डायग्राम नहीं है, सिर्फ आपके बुक में आप यहाँ समझ लोगे तो आपको रिफाइनिंग इजी हो जाएगा समझने में। They only give you a reaction, but let us understand, okay? So we will have an electrolytic tank. Electrolytic tanks are usually made up of glass so that they are non-reactive, and then we will have two electrodes out here. So let's have two electrodes. So one will be cathode and one will be anode. So एक हमने ऐसे इलेक्ट्रोड ले लिया और एक और इलेक्ट्रोड हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम करते क्या हैं। यू आर एक्चुअली डूइंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ molten chlorides. Remember, it is molten chlorides, means in our case NaCl, but NaCl will be molten. There is a huge difference between brine and molten NaCl. Brine is aqueous solution of sodium chloride. Brine is aqueous solution. पानी में सोडियम क्लोराइड मिलाते मिलाते इतना गाढ़ा कर दो उसको हम ब्राइन बोलते हैं। ये ब्राइन नहीं है, लेकिन ये प्योर सोडियम क्लोराइड को आपने मेल्ट कर दिया है। Have you understood? So in an electrolytic cell we will always need what is known as an electrolyte. इस केस में हमारा इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसको समझेंगे तो रिफाइनिंग इजी हो जाएगा। मोल्टन सोडियम क्लोराइड हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज कर रहे हो और आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर दोगे, तो द रिएक्शन दैट यू विल गेट हियर इज दैट, sorry, the reaction that we will get here is we will get the production of sodium ions and chloride ions, because this is electrolysis. You are splitting the compound, right? And we will have our connection set here. Okay? Now just see. This is the positive electrode and this is my negative electrode. This will be known as my anode and this will be known as my cathode. At cathode and at anode. Let's see. Sodium ions are already present out here. Okay, now the electricity that you are supplying, whose electricity say the electron will be picked up. It's not that sodium, there was no sodium metal that it is losing electron. The electron will be picked up from the external circuit. So at cathode, my sodium plus will gain an electron and will form sodium metal, and the metal being positive ion will always have the attraction for the negative electrode. तो आपका metal formation होगा at this, and at anode we will have chlorine or chloride ion
will 2Cl will lose 2 electrons, so it will become chlorine 2 plus 2 electrons. These 2 electrons, इसमें हम इसको यहाँ बैलेंस कर सकते हैं, so 2 sodiums. That is the reaction. Try and understand. These electrons, this is not that sodium electrode se nikla. These are usually, this is not shown in your book. These are carbon electrodes, graphite electrodes. So when you are passing external electricity, कोई इलेक्ट्रॉन खा नहीं लेता है, आप इलेक्ट्रॉन खा नहीं सकते हो, वही इलेक्ट्रॉन कोई एक लूज करेगा, कोई एक गेन करेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड? इफ यू सी एनोड में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. -1 is becoming 0, so it is an increase. So definitely this is oxidation. Have you understood this thing or not? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है because the oxidation state of chlorine is what? -1. It is getting to 0, and if you see here at cathode always reduction is happening. +1 is getting reduced. So the sodium ion gains an electron at cathode. And how did it gain an electron? Because the same chloride ion lost 2 electrons. तो यहाँ से आपको यहाँ पे क्लोरीन का बबलिंग मिलेगा आपको. Chlorine will bubble out and sodium deposits will start forming on this side. This is electrolytic refining. It's not electrolytic refining, electrolytic reduction of molten chlorides. समझ में आया? एक बार फिर बता दो. Want once more to be explained? Okay. We are dealing for what? We are dealing for highly reactive metals. Highly reactive metals are sodium, magnesium, calcium, potassium, then aluminum. In our series, in our book, we have to study about sodium. The way we do it is that we actually will do reduction of their chlorides. हम oxides नहीं लेते इस केस में. ऑक्साइड्स लेने से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? कार्बन कैन नॉट टेक अवे द ऑक्सीजन बिकॉज द मेटल हैज मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन. दीज आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स. ओके, सो वी टेक देयर मोल्टन क्लोराइड. दिस इज नॉट ब्राइन. मोल्टन क्लोराइड ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड. सो मोल्टन क्लोराइड में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देते हो तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड के आयंस फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं. सो द सोडियम आयन विल एक्चुअली पिक अप इलेक्ट्रॉन. Which electron? Which the chloride ion actually has lost. The chloride ion loses 2 electrons and oxidizes to form chlorine. ये लेकिन रिडक्शन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है. -1 से 0 गया है, ऊपर उठा है वो. So it gets oxidized and chlorine gas will get bubbled out from the anode. So anode में ऑक्सीडेशन हुआ है और कैथोड में क्या होना शुरू हुआ? कैथोड में रिडक्शन. यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको सोडियम ने मालपुए की तरह खाया. खाने के बाद क्या बनाया? 2 सोडियम. तो सोडियम डिपॉजिट्स यहाँ पे फॉर्म होना शुरू होगा, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा. ठीक है. Our next topic is to study about refining, and the refining in your course is electrolytic refining. इसीलिए ये बताया आपको, अब वो ज्यादा इजी हो जाएगा. Can I go ahead? इसको ध्यान रखिएगा हायर क्लासेस के लिए. ये अभी कार्टून नेटवर्क चल जाता है, बट आगे चल के दिस इज द वे. एनोड इज वन इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. और रिडक्शन में हम क्या पढ़ते थे? रिग. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये देखो, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये रिडक्शन. क्लियर? आइए, ये आप 8 में पढ़ चुके हो, देखते हैं कितना याद है आपको. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इसमें यूजुअली वी टॉक अबाउट कॉपर. याद है लास्ट क्लास में हमने कॉपर को बनाया था. सो कॉपर, जैसे आपने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया, ओके, व्हेन यू एक्सट्रैक्ट कॉपर, अब ये कॉपर तो बन गया है बट ये इम्प्योर है, ये यूज के लिए नहीं यूज कर सकते. तो इसकी प्योरिटी इंप्रूव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा समथिंग अबाउट से 99.9% प्योर. तो इसको हम कहते हैं दिस विल बी प्योर कॉपर. और इसको हम फिर इलेक्ट्रिकल यूज में ला सकते हैं, लाइक मेकिंग वायर्स एंड ऑल, इलेक्ट्रिकल यूज. अब ये है हाई ग्रेड प्योरिटी, HGP है हाई ग्रेड प्योरिटी. ये प्योरिटी लाने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. अब ये बड़ा मजेदार प्रोसेस है. ठीक है, आओ देखते हैं इस प्रोसेस को. सो वंस अगेन वी विल हैव आवर टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. अब इसमें क्या क्या चीज चाहिए एक एक करके लिखते जाते हैं. नंबर 1, यू नीड अ electrolytic tank. It is covered very small in a short manner in NCERT.
पर पूरा जानना है आपके लिए जरूरी है। एक ये चाहिए आपको, इसके बाद आपको एक और चीज चाहिए, नंबर 2 आपको एक इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा होता है सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड, टू बी रिफाइंड। हमारे केस में हम कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो हम लेंगे CuSO4, एक्वस, एक्वस CuSO4 लेंगे, ठीक है। तो चलिए भर देते हैं इसको एक्वस CuSO4 से। तो CuSO4 ब्लू कलर होता है, तो हमने इसको एक्वस CuSO4 से भर दिया। तो 2 नंबर हो गया क्या हमारा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब याद रखना, ultimately you have to extract, use your common sense, look at me, you have to extract what, copper, कॉपर आयन बन के ही आएगा, और उस कॉपर आयन को आपको कलेक्ट करना है। तो कॉपर आयन के सर पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, वो जाएगा किसके तरफ, नेगेटिव के तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉपर हम लाए हैं अभी, विच इज इम्प्योर, इसको नेगेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि यहां से निकाल के नेगेटिव में ले जाना है। सोचो फिर से, I am the guy who is impure right now. You want to take pure fragments out of me. Those pure fragments will come out in positive charge. So they will always go into the negative one. So how will you connect me? Do not make me negative. Make me positive. So that I can give out more positives, repel होगा, and those positives can go to the negative one. तो हमें पहला इलेक्ट्रोड जो चाहिए वो है हमारा इम्प्योर कॉपर लेना है। तो मैं इसको वायलेट से दिखाता हूं, ये हमारा इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। दिस इज माय इम्प्योर कॉपर। यो मोटा सा, इसको इंगट बोलते हैं हम, इंगट, और इंगट इज द सिलिंड्रिकल शेप ऑफ द मेटल दैट यू रिफाइन, एंड इफ इट इज क्यूबॉइडल वी कॉल इट बिलेट, BILLET। इसको हम कहते हैं इंगट, कहते हैं। आपने एक कॉपर का इंगट को डुबो दिया, हाँ 8 में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 3। नंबर 3 में आपको चाहिए इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। हम ग्रेड 10 में हैं तो हमारे लिए सब कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कैथोड बनेगा नेगेटिव, एनोड बनेगा पॉजिटिव। अब सवाल आता है कि हम किसको यहाँ पे, सो वी विल टेक आवर इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, और ये थिक होगा, इसे हम क्या बनाएंगे, इसे हम एनोड बनाएंगे। अच्छा, अब दूसरा है क्या, कैथोड चाहिए। कैथोड में हम क्या करेंगे, एक बेट डालेंगे, प्योर स्ट्रैंड ऑफ कॉपर रख देंगे, थिन कॉपर वायर, प्योर, ठीक है ना। तो यहां पे हम रखेंगे प्योर कॉपर, थिन वायर जैसा, समझ लो। अब ये क्या है, ये गणेश जी है, ये गणेश जी का चूहा है। रिएक्शन होते होते चूहा मोटा हो जाएगा, गणेश जी पतला हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। वैसे याद रखने का, गणेश जी स्लिम हो जाएंगे और चूहा मोटा होता है। चूहा प्योर है अभी यहाँ पे। अब इसको कनेक्शन देना है, आइए इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो इसको हम किस में कनेक्ट कर देंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो ये है हमारा इम्प्योर Cu और ये है प्योर Cu, और इसको कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव में। और इसमें हाई वोल्टेज डीसी करंट ही यूज होता है, ऑल्टरनेटिंग ने डीसी करंट यूज होता है। बात समझ में आई। तो यहां क्या है, यहां है CuSO4 एक्वस में है। स्विच ऑन कर दे, ठीक है। आइए अब रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4 एक्वस में, ये सबसे पहले डिसोसिएट होगा और पैदा करेगा Cu+2, और क्या पैदा करेगा, SO4 2-, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई एम डेलिबरेटली राइटिंग दिस Cu2+ इन येलो कलर, ओके। तो हमें यहां से मिलेगा Cu2+ और साथ में मिलेगा SO4 2-। मैंने इसे येलो से लिखा जानबूझ के, बात समझ में आई, ठीक है। एनोड में क्या होगा, अब नंबर 2, एट एनोड
एनोड में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में कॉपर जो है Cu2 प्लस, ये सॉलिड कॉपर है, Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो एनोड का जो कॉपर है ना, उसको जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा, यहां से आपको मिलेगा Cu2 प्लस। हालांकि ये दोनों सेम चीज है, मैंने जानबूझ के दो अलग कलर यूज किया है, उसका भी कोई राज है, राज गहरा है, देखिए, देखते रहिए एपिसोड। और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समझ में आया? क्लियर? अब आते हैं कैथोड में। एट कैथोड, कैथोड में होता है रिडक्शन। अच्छा सर, आपको कैसे पता यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है? यू भूतनिकाज, ऑक्सीडेशन इज ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब सुनो, बड़ा मजेदार किस्सा है। हमको वेदांत ने 2 रुपया देके बोला मेरे लिए एक इरेजर खरीद के लाइए। हमने वेदांत के 2 रुपए को यहां चेस्ट के पॉकेट में रखा। जब हम दुकान में गए, ऐसी कोई गारंटी है क्या ये वाला 2 रुपया यूज करना है? यहां भी एक 2 रुपया है ना, हम ये वाली 2 रुपये से खरीद लिए, मेरा अपना 2 रुपया है, और बाद में वेदांत के 2 रुपए को यहां पे रख लेता हूं। उसको उसके इरेजर से मतलब है, उसने थोड़ी बोला सर मेरा वाला नोट ही यूज कीजिएगा, ऐसा तो नहीं बोला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो कॉपर है ना, ये लैलो लैलो डर्टी फेलो वाला, अब ये कॉपर क्या करेगा? ये कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को मालपुए की तरह खाएगा। तो वही है रिडक्शन। तो रिडक्शन में Cu2 प्लस, अब देखो ये Cu2 प्लस को मैंने ना येलो से सर्कल कर दिया, और ये Cu2 प्लस को मैंने वॉयलेट से सर्कल करके रखा, ये दिखाने के लिए कि दोनों अलग अलग है पर दे आर ऑल आइडेंटिकल। This will what it will do, it will eat the 2 electrons and it will become what? Copper. समझ में आ रहा है? And this is reduction. Reduction is rig, gain of electrons. समझ में आ रहा है? अब जैसे जैसे ये ऐसे खाते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? जैसे मैंने कहा था, चूहा बन जाएगा हमारा मोटा। ये चूहा जो है ऐसे टक 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 करके चूहा मोटा होता जाना शुरू हो जाएगा, इसमें कॉपर आना शुरू हो गया। दीज आर ऑल प्योर कॉपर। समझ में आ रहा है? और ये जो एनोड है ना, ये एनोड धीरे धीरे घटता जाएगा, ये ऐसे पतला होता जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब सवाल आता है, सर ये वाला कॉपर कहां गया? ये वाला कॉपर कहां गया? अब देखो, सल्फेट के साथ डिवोर्स हो गया था, तुमने देखा सल्फेट का डिवोर्स हो गया था, तो सल्फेट तो रो रहा है, हाँ हमारा पति कहां हमको छोड़ के चला गया। तो ये आके कहता है घबराओ मत, हम तुमसे ब्याह करेंगे। और ये जो Cu है, ये वापस ये जो Cu है, ये Cu प्लस 2 प्लस और SO4 2 माइनस फिर से कंबाइन होके CuSO4 एक्वस बन जाता है। यहां से एक बढ़िया फाइंडिंग है, ड्यूरिंग द प्रोसेस द इलेक्ट्रोलाइट नेवर गेट्स यूज्ड अप। तुम्हें दिखेगा ही नहीं आंख से इसमें कोई चेंज हो रहा है, ये तो हम आपको अंदर की कहानी बता रहे हैं। ये टूट भी रहा था और रिप्लेनिश भी होता जा रहा है। द ओनली थिंग इज कॉपर from the electrolyte goes and deposits into what? Cathode. But with a condition, हम एक देंगे तो हमको भी एक दीजिए। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक इसके पास कॉपर है। उसके आगे ये डिसोसिएट होकर आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसका रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है। Have you understood? So let's revise this process once again. The metal that you want to refine will always be taken as anode, and a pure strand of that metal will be taken as cathode. The idea behind it is metal ions being positive will always travel towards the negative side. ये याद रखना। A salt of the metal to be refined is used as the electrolyte. ठीक है? And after that you have connected. The first reaction that will happen is copper sulfate will split up into copper and sulfate ions. And at an anode oxidation will take place. So copper will oxidize to copper 2 plus and release 2 electrons. Those 2 electrons will be eaten by this copper 2 plus and it will immediately go and chipify here. Right? तो 2 इलेक्ट्रॉन का कहानी तो किसी ने छोड़ा, किसी ने ले लिया।
अब बाकी रह गया था तलाक वाला सल्फेट और पहले वाला कॉपर, दोनों फिर से मिलके इस सॉल्यूशन को रिप्लेनिश। धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि ये इम्प्योर है ना, दिस आइटम इज एंड ऑफ द डे दिस आइटम इज एन इम्प्योर आइटम, व्हिच वन, योर दिस इज इम्प्योर। तो यहां से कॉपर जाते 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 लास्ट में क्या रह जाएगा, इम्प्योरिटीज रह जाता है। तो यहाँ पे वो इम्प्योरिटीज बाद में इसको, अच्छा ब्लैक कलर नहीं जा रहा है, बहुत गंदा है, और सब इम्प्योरिटी जाके यहाँ पे घुट करके गिर जाता है ऐसे नीचे, और इसको हम कहते हैं एनोड मड। आपकी बुक में नहीं है तो जान सकते, एनोड मड। तो सारा एनोड मड गिर गया। अभी जो कॉपर आपको मिला ना, ये एकदम 99% प्योर है, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोलाइटिकली। हाँ ऐसे ही आता है, कहीं ना कहीं से आएगा। ये तो चिकन एंड एग वाली स्टोरी हो गई ना, वो आप कहाँ से लाए, तो थोड़ा सा रख देना पिछले बार वाला। अब कर्ड बनाते हैं ना घर में, कर्ड के सैंपल से ही तो कर्ड बनता है, कर्ड बनाना आता है तो कर्ड के सैंपल से ही कर्ड बनता है। तो कर्ड के, अभी आप आरब पूछ रहा है सर पहला वाला कर्ड कैसे बना था, उसको इमली उमली से बनाया गया था किसी प्रोसेस से। क्लियर? हाँ, जो मेटल को आप रिफाइन कर रहे हो उसी का सॉल्ट हम यूज करते हैं। आप कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, पर कॉपर सल्फेट का ज्यादा यूज होता है। और को कॉपर का और कहां से CuSO4 है? कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। कॉपर के दो और आपने देखे हैं यहाँ पे, ऑक्साइड और सल्फाइड और देखा है, और से क्या लेना देना है? CuSO4 इज अ सॉल्ट। CuSO4.5H2O होने से ब्लू कलर दिखेगा, इसका नाम है ब्लू विट्रॉल। और CuSO4 एनहाइड्रस है तो वो कोई कलर, लेकिन ये एक्वस है ना तो ये नीला दिखेगा आपको। हाँ, कहां से कहां, ये सब नहीं चाहिए अगले क्लास में, इसलिए पढ़ के आना है। ये सब हो रहा है क्यों पता है? क्योंकि क्लाउड है अभी भी। ये क्लियर हुआ? एक बार और रिवाइज करें तो अब सुनिए, पहले हमने लो ग्रेड लेस रिएक्टिव मेटल्स में हमने कॉपर और मर्क्यूरी को स्टडी किया था। जो कॉपर हमें वहां पे मिलता है वो कॉपर तो मिला पर वो प्योर नहीं है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कॉपर्स मैक्सिमम यूजेस इन इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिकल यूजेस के लिए हमें हाई ग्रेड प्योरिटी चाहिए। That high grade purity is always obtained by electrolytic refining. These are all electrolysis type of processes end of the day. So electrolytic refining means first I need an electrolytic tank. That tank is made up of glass so that no reaction takes place. Then you need an electrolyte. The electrolyte should be a salt of the metal that you want to purify. Since you are purifying copper, so you are using copper sulfate, right? Then you need two electrodes, one cathode, one anode. Now start thinking. Cathode is always negative, you know, Cn, okay, because it's an electrolytic cell, and anode is always positive. Now where will you place whom? End of the day, what do you want? You want copper. Copper will, in electrolytic refining or in electrolytic, what you call reduction, the metal will always flow as metal ions, and metal ions are always positive. So a positive ion will flow to which electrode? Always to the negative electrode. So my coppers will go and deposit there. So initially you cannot put your impure copper as negative. You will put your impure copper always as positive. Understood? And the thin strand of pure copper you will put as what? The negative electrode, which is cathode. Now once you turn on the electricity, which is a high voltage DC, this electrolyte will first dissociate into its ions. Copper dissociates into yellow copper and sulfate, right? And at anode oxidation will take place. So you get a violet copper and 2 electrons are released. This yellow copper will eat these 2 electrons and will start getting deposited out here. This reaction happens where? This reaction happens at the, see, battery or anyone does not give you electrons. A battery only pumps electron. This electron also is actually replenished. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फिर यहाँ पे जा रहा है। अचानक कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो थोड़ी होगा, एटम ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है through this external circuit. Are you understanding? So this copper will eat these 2 electrons, get deposited here. Understood? Because electrons are always on the negative side, and this being a positive will get. So slowly this electrode will start getting thicker and it will be pure copper. And this electrode will become thinner and thinner. Now you can ask the question, what happened to the violet copper plus? The violet, see, there is, you cannot distinguish between these two. You can, many people, this coloration has been done different to make you understand कि ये directly यहाँ नहीं जाता, ये through ऐसे जाता है.
इसलिए मैंने बोला वेदांत ने मुझे 2 रुपए दिए इरेजर खरीदने के लिए, पर इस 2 रुपए से नहीं खरीदूंगा, मैं अपने जेब के 2 रुपए से खरीदूंगा। मैंने खर्चा किया क्या? नहीं ना, मैं इसका 2 रुपए अपने जेब में रख लिया वापस। इसको इरेजर मिल गया, दुकानदार को भी 2 रुपए मिल गए, मैंने कोई खर्चा नहीं किया अपने पैसे, मुझे तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर। तो ये वाला कॉपर फिर इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके, सॉरी इस सल्फेट के साथ कंबाइन होके, तो द सल्फेट इज नेवर यूज्ड। यू हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम यही करते हैं, जिसको प्लेट करना है उसको इस साइड में रखेंगे, चम्मच को इस साइड में रखेंगे, तो सारा चीज जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। वही फंडा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इज कोरोशन। कोरोशन इज अ दादीमा स्टोरी, सो लेट्स लिसन अबाउट कोरोशन, ठीक है। कोरोशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ फ्लरिशिंग इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी फ्लरिश होता है जब 3 चीजों का कंजम्पशन बढ़ता है। वन इज स्टील। स्टील इज अ मेजर ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, मतलब उतना कंस्ट्रक्शन है, उतने ब्रिजेस है, ये सब प्लांट्स है जो भी है, और जहां आपने ये सब मेटल यूज कर दिया वहां सब कोरोशन। इनफैक्ट द आईफिल टावर what you see needs a huge cost to maintain it only for corrosion. Corrosion is an enemy for any industry, and a huge amount is budgeted for corrosion, whether you see pipelines which are below the earth or wherever you are going. हमारे लिए corrosion is one of the thing which we have to plug. Now in order to stop corrosion, one of the process that we use is galvanization. अब corrosion रोकने के क्या क्या तरीके हैं? मान लीजिए आपके पास एक किचन का नाइफ है, एकदम सिंपल वाला corrosion की बात करते हैं। We've got a kitchen knife and you want to prevent it from getting corroded, ऑयलिंग करके रख दो इसको। आप यूज नहीं करने वाले हो तो इसमें क्या लगा सकते हैं? वैसलीन का लेयर लगा के रख लीजिए। कोरोशन होने के लिए कोई भी मेटल का मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट को तोड़ना पड़ेगा। मॉइस्चर मींस एयर and water vapor. Air में ऑक्सीजन है, so you have to cut that particular oxygen should not come and hit it. In the presence of oxygen alone will not do anything, but whenever there is moisture it will start attacking this particular metal. So one of the ways, जैसे हमने इसके हम लोग क्या करते हैं घरों में, हम ग्रीस या फिर वैसलीन लगा के रख दो। I don't know how many of you have seen your car battery. कार बैटरी के टर्मिनल्स में भी हम वैसलीन लगा के रखते हैं, ताकि there is, even in these battery also, if you turn your head also you will see those terminals have got Vaseline put right in that box. Vaseline will be put out there so that no corrosion takes place. Another way will be, these are all surface protection, so we can use painting. Now painting and all again have repeated expenses, because once the layer of paint gets removed, again that area has been exposed. जैसे expose हो गया तो आपका तो होना शुरू हो जाएगा। Electroplate is the electroplating we do, not exactly electroplating, the word we use is called anodization. That is not covered in your syllabus, वो higher level में पढ़ते हैं। Like जैसे आप टाइटेनियम वगैरह को प्रिवेंट करना चाहिए, आप टाइटेनियम से एनोडाइज कर सकते हैं, मींस another layer will be put on it. For example, let's say aluminum has got it's highly reactive, तो aluminum अपने आप से ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है। Magnesium will also form oxide layer, and once that oxide layer is formed, it is very difficult to penetrate aluminum and magnesium. So this is one. Then we can also use a process which is called galvanization. What is galvanization? It is a process in which articles made of iron are dipped in a solution of molten zinc. आयरन के आर्टिकल्स, ये बड़ा कॉमन है, ये जो मूर्ति मिलता है ना, ये सब ले जाइए, ये कृष्ण जी का मूर्ति वगैरह चमकीला, वो सब आयरन वाला रहता है, वो सबको बाल्टी में से चुबो के उठा देगा मोल्टन आयरन में। तो once you do that, it creates a layer of zinc. But again, as I said, the question is, zinc is more reactive than iron. But zinc is more reactive than iron, but once zinc reacts with oxygen, it will form zinc oxide. And once zinc oxide has been formed, you cannot penetrate. That's why ships में भी हम magnesium coating करते हैं, magnesium coating under. Another way is called alloying. Alloying is a technique, like say iron. अगर हमने iron को लिया ना, iron itself is highly reactive. Iron soft हो जाता है, तो iron को हम alloy करते हैं। Iron में अगर आप कार्बन मिलाते हो तो ये आपको देता है steel. And this is mild steel. Okay, steel मतलब ये खाने का प्लेट वाला steel नहीं है, steel. Steel is an alloy of iron and carbon. So how do you do? What is an alloy? An alloy is a homogeneous mixture. Grade 9 याद है तो? Homogeneous solution. It's a homogeneous solution जिसमें आपको दो
कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पता नहीं कर सकते हो आप. इट्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन वेयर 1 will be known as your primary metal. 10 का मतलब केमिस्ट्री में प्राइमरी होता है और ये होता है हमारा सेकेंडरी मेटल. प्राइमरी मेटल को पिघलाने के बाद टिपिकली आइसक्रीम बनाना जैसा वनीला का आपने बैटर बना लिया है, अब उसमें आप इंजेक्ट कर रहे, आप क्रीम बैटर बना के उसमें चॉकलेट इंजेक्ट कर रहे हो तो कैसा बनेगा, चॉकलेट वाला बैटर बन जाएगा. सो दिस इज योर प्राइमरी बैटर, उसमें आप सेकेंडरी को मिक्स करते हो, ये आपको क्या फॉर्म करेगा, माइल्ड स्टील. ऐसा आने में आयरन में हार्डनेस आ जाता है. एंड स्टील को लेके देयर इज अ स्पेशल सब्जेक्ट इन मैकेनिकल कॉल्ड मटेरियल साइंस. व्हाट टाइप ऑफ स्टील, हाउ विल यू इंप्रूव ग्रेन स्ट्रक्चर, उसमें आप हार्डनेस कैसे लाओगे, आपको चाहिए कि वो बेंड हो लेकिन वो हार्ड रहे. इसमें इसी स्टील में अगर हम निकल और क्रोमियम को फर्दर ऐड करें तो ये बनता है स्टेनलेस स्टील जो कि एब्सोल्युटली कोरोशन फ्री है. माइल्ड स्टील इज द स्टील व्हिच इज द चीपेस्ट वन व्हिच यू सी इन योर, आपका जो बालकनी के ग्रिल विल्स है ना, those are all known as mild steel, MS. MS के ऊपर हम निकल क्रोमियम लगाएंगे, वेनेडियम लगाओगे तो और अच्छा ग्रेड का स्टील बनेगा. those are very very costly ones. then you get stainless steel. स्टेनलेस स्टील में निकल और क्रोमियम से भी हम एलॉय करते हैं. कुछ और एलॉयज जो हमें पता है जैसे ब्रास एंड ब्रॉन्ज. ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. फिर एक और एलॉय आता है सोल्डर. सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड लेड. सो यू कैन, एंड इन एलॉयज will show strength properties higher than both the participants. Alloys show strength properties higher than both the participants. यहां पे कवर्ड नहीं है, पर अगर आप जानना चाहो तो जैसे एक टॉपिक और है इस, ये भी आपके कॉम्पिटेंसी पे, हाँ, टिन, स्टेनम. जैसे गोल्ड है ना, अगर आप प्योर गोल्ड यूज करते हो तो प्योर गोल्ड हम कहते हैं 24 कैरेट्स. 24 कैरेट्स से आप ज्वेलरी नहीं बना सकते हो. 24 कैरेट्स इज वेरी सॉफ्ट. अच्छा, पहनते ही ना बहू की नेकलेस तो ऐसे ही उतर गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम इंडिया में ज्वेलरी बनाते हैं 22 कैरेट्स के. 22 कैरेट्स मतलब इसमें हम ऐड करते हैं 2 पार्ट्स और 2 कैरेट्स या 2 पार्ट्स जिसको भी आप कह लो, 2 कैरेट्स. इसमें आता है इम्प्योरिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर. तो ये पहले जमाने में जो ज्वेलर्स होते थे वो सिल्वर कम मिला के आपको कॉपर ज्यादा मिलाएगा. इसको हमारे देशी भाषा में लोग बोलते थे अच्छा सोना नहीं दिया, लड़की की शादी में खाद वाला सोना दिया है. खाद वाला सोना मतलब समझ रहे हो ना, सोने की प्योरिटी अच्छी नहीं है. 100 सुनार की एक लोहार की. तो ये होता है आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त. तो वी नाउ